Hello everyone, welcome to my YouTube channel Get Wiser. Today we will do background readings of literary criticism, paper first of fourth semester. First is new historicism. Let's discuss new historicism. Is a literary theory एक literary theory है from the 1980s 1980 से that reads text not as isolated art but as products embedded in their specific historical and cultural moments, viewing history and literature as mutually influential, often focusing on power dynamics, marginalized voices, and the circulation of social energy between literary and non-literary cultural artifacts. क्वाइन बाय स्टीफन जे ग्रीनबाल्ट इसने इसको क्वाइन किया था. इट मूव्स बियॉन्ड ट्रेडिशनल हिस्ट्री टू सी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एज अ टेक्स्ट एंड लिटरेरी वर्क एज कल्चरल आर्टिफैक्ट्स, चैलेंजिंग द आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल थीम्स और फिक्स्ड मीनिंग्स. की कंसेप्ट्स हैं इंटरकनेक्टेडनेस, कल्चरल आर्टिफैक्ट्स, पावर एंड डिस्कोर्स, सर्कुलेशन ऑफ सोशल एनर्जी एंड सिम्पेटोमेटिक रीडिंग. ये कौन सी रीडिंग है? अप्लाइंग मार्क्सिस्ट आइडियाज, अल्थुजर एंड साइको एनालिसिस जो कि फ्रेड से रिलेटेड है, टू फाइंड अनकॉन्शियस आइडियोलॉजीज विद टेक्स्ट. सर्कुलेशन ऑफ सोशल एनर्जी ये क्या है? ये आइडियाज हैं एंजाइटीजनेस एंड पावर डायनेमिक्स फ्लो बिटवीन लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी टेक्स्ट क्रिएटिंग कल्चरल मीनिंग. देन पावर एंड डिस्कोर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय मिशेल फोको. न्यू हिस्टोरिसिज्म एनालाइजिंग हाउ पावर ऑपरेट्स थ्रू लैंग्वेज एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस. Then cultural artifacts, both literary works, non-literary documents are treated as cultural texts, revealing power structures. How it works, ये काम कैसे करते हैं? Instead of just analyzing Shakespeare's Hamlet, शेक्सपियर के हेमलेट को सिर्फ एनालाइज करने की बजाय क्या करना चाहिए? ए न्यू हिस्टोरिसिट वुड रीड इट. जो न्यू हिस्टोरिसिट है वो क्या करता है? न्यू इतिहासकार क्या करता है? उसको पढ़ता है. अलोंगसाइड एलिजाबेथन कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, contemporary sermons or accounts of public executions to understand how power, madness, and duty functioned in that specific moment. Second है, it seeks to reveal the complexities, contradictions, and less known aspects of the past rather than presenting a single unified historical narrative. की फिगर्स इस न्यू हिस्टोरिसिज्म के की फिगर्स हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट की फिगर है स्टीफन जे ग्रीनबर्ट, जिन्होंने इस टर्म को क्वाइन भी किया हुआ है. इज अ लीडिंग फिगर है स्पेशली इन रेनेसो स्टडीज. नेक्स्ट, मिशेल फोको, इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर हुज आइडियाज ऑन पावर एंड डिस्कोर्स वर फाउंडेशनल. एंड देन क्लिफोर्ड गर्च. सो ये तीनों स्टीफन जे ग्रीनवाल्ड, मिशेल फोको एंड क्लिफोर्ड गर्ज तीनों क्या है? इम्पोर्टेंट की फिगर्स हैं ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म. सो अगर आप इतना भी लिख देते हो तो यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन दिस शॉर्ट आंसर्स इन योर एग्जाम, इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम. सो माई गाइडेंस एंड माई सपोर्ट is always there for you. Next, we will do queer theory. Queer theory is a critical interdisciplinary field. Queer theory क्या है? Critical interdisciplinary आलोचनात्मक interdisciplinary field है that focuses on challenges, जो फोकस करती है challenges को. core concepts की core concepts हैं इसके: deconstruction of norms, social construction, fluidity and instability, queering, इंटरसेक्शनलिटी, ये इसके की कंसेप्ट्स हैं. नेक्स्ट आते हैं ओरिजिन्स एंड गोल्स. ओरिजिन कब हुआ क्यूअर थ्योरी का? इमर्ज इन द 1990s, 1990 में इमर्ज फ्रॉम फेमिनिस्ट, लेस्बियन एंड गे स्टडीज विद थ्योरिस्ट टेरेसा डे लॉर्ड्स coined the term to move beyond fixed identities. Reclaiming queer theory reclaims a historical regulatory term as an umbrella for non-normative identities and critical lens political goal to dismantle oppressive systems that marginalize non-norms lives, not just to gain inclusion within existing structures. How it works? It analyzes cultural text and social practices to show how normal identities are created and enforced. It encourages a seeing mismatches between sex, gender identity, and orientation as sites of analysis, not just division. It supports transgender studies and challenges biological determination. ये था और इट्स ऑल अबाउट क्यूअर थ्योरी. इसमें आप ओरिजिन, इसका कब ओरिजिन हुआ था, क्या गोल्स हैं, पॉलिटिकल गोल, इसको ऐड करते हो, कैसे वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स, इन सबको ऐड कर दोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, हमने अब 2 कर लिए हैं शॉर्ट टर्म्स. नेक्स्ट थर्ड शॉर्ट टर्म है
थर्ड शॉर्ट टर्म करेंगे हम। एक तो हमने कर लिया क्यूअर थ्योरी एंड देन कम्स मार्क्सिज्म। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म क्या है? क्लास स्ट्रगल। मार्क्सिज्म के अंदर कोर कंसेप्ट हैं क्लास स्ट्रगल, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, एक्सप्लॉइटेशन, एलाइनेशन, रिवॉल्यूशन एंड कम्युनिज्म। क्लास स्ट्रगल ऑफ हिस्ट्री, इट इज अ सीरीज ऑफ conflicts between dominant and oppressed classes in capitalism. This is between capitalists and workers. Historical materialism, economic structures shape society, cultures and ideas. Exploitation and alienation, capitalists profit by paying workers less than the value their labor creates, alienating workers from their labor and its products. Revolution, workers will eventually become aware of their exploitation, revolt and seize the means of production. Communism, the final stage, a stateless classes society with a common ownership replacing capitalism. Key ideas in practice: critique of capitalism, labor theory of value, dictatorship of proletariat. Critique of capitalism क्या है? Sees it as inherently exploitative, creating inequality and alienation. Labor theory of value, the value of a कोमोडिस्ट लेबर थ्योरी में आता है वैल्यू ऑफ अ कोमोडिस्ट। नेक्स्ट आता है रशियन फॉर्मलिज्म। रशियन फॉर्मलिज्म ये क्या 1910 से 1930 के बीच में जो लिटरेरी मूवमेंट हुआ है उसको रशियन फॉर्मलिज्म के रूप में जाना जाता है। फॉर्म्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस पर इसका फोकस रहा है मेन रूप से डीफैमिलराइजेशन और मेकिंग द फैमिलियर स्ट्रेंज। डिफैमिलराइजेशन का इसका जो मेन कंसेप्ट है, इसका मतलब है जो फैमिलियर थिंग्स है उनको विचित्र बनाना, स्ट्रेंज बनाना। टू हाइटन परसेप्शंस एंड डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फैबुला होता है स्टोरी एंड सिजेट प्लॉट, लीड बाय फिगर्स लाइक विक्टर शाइलोवस्की एंड रोमन जैकोब्सन। इट sought a scientific analysis of literature, unique literariness through close reading, influencing modernism. Core ideas and concepts हैं close reading, defamiliarization, fabula, sujet, device, autonomy of art. Key figures हैं विक्टर शाइलोवस्की, रोमन जैकोब्सन, बोरिस and Yuri Tanuk. Influence and legacy. Though suppressed by Stalinist formalism, ideas refers in the 1960s heavily influencing structuralism, post-structuralism and narratology. It focused on form and technique, also impacted film theory and semiotics. Semiotics यानी related to words, उनको जो क्या क्या उन्होंने फोकस किया है। मेन जो की फिगर्स हैं रशियन फॉर्मलिज्म के उनको ऐड करना मत भूलना। की फिगर्स हैं विक्टर शाइलोवस्की, रोमन जैकोब्सन और बोरिस इचहनगम एंड यूरी टाइनेनो। विक्टर शाइलोवस्की ने क्या किया था? क्वाइन डिफैमिलराइजेशन, फेमस फॉर आर्ट एज टेक्निक। रोमन जैकोब्सन एंड देन फिर ये 3 राइटर्स हो गए। स्ट्रक्चरलिज्म, नेक्स्ट कम स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? इट फोकस ऑन स्ट्रक्चर्स। कोर प्रिंसिपल्स क्या है इसके? फोकस ऑन रिलेशनशिप, अंडरलाइंग सिस्टम्स, सिस्टम ओवर एलिमेंट्स, यूनिवर्सल पैटर्न्स। Focus on relationships, meaning comes from the differences and relationship between elements, underlying systems, culture, language and thought operating and a system over elements and universal patterns. Key applications and examples में आते हैं linguistic seizure एंड देन आता है इको क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट कम्स इको क्रिटिसिज्म। इको क्रिटिसिज्म क्या है? इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट स्टडीज इन द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर, कल्चर एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट, एनालाइजिंग हाउ नेचर इज रिप्रेजेंटेड एंड क्रिएटिंग ह्यूमैनिटी इम्पैक्ट ऑन द प्लैनेट, इमर्जिंग फ्रॉम ग्रोइंग इकोलॉजिकल अवेयरनेस एंड द क्लाइमेट क्राइसिस. It goes beyond just nature writing to examine broader ecological issues in text, questioning anthropocentric, human-centered, इसका मतलब है ह्यूमन सेंटर्ड व्यूज एंड एक्सप्लोरिंग थीम्स लाइक विल्डरनेस, इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड द इंटरकनेक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. की एरियाज इंक्लूडिंग लिटरेरी जो की एरियाज वो हैं इंटरकनेक्शन, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म. की फोकस एरियाज लिटरेरी एनालिसिस, इन्वायरमेंटल एथिक्स, कल्चरल क्रिटिक्स. सब जेनर्स हैं इको फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल इको क्रिटिसिज्म, अर्बन इको क्रिटिसिज्म एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस. ओरिजिन कब 1980 से 1990 के बीच में. और गोल क्या है इसके? मेन गोल टू फोस्टर इक्वल लिटरेसी एंड कॉन्शियसनेस, प्रमोटिंग रीडर्स टू रीथिंक their relationship with the natural world and inspiring positive environmental change through cultural understanding. Hence, this is all about eco-criticism we learn. Next comes
Next, our short terms which we will do in this session is न्यू क्रिटिसिज्म क्या होती है? इट बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट टू फाइंड मीनिंग विद इन द फॉर्मल एलिमेंट्स लाइक मेटाफर आयरनी एंड स्ट्रक्चर. इट एम्बेसेस द टेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वालिटीज एंड रिजेक्ट्स ऑथर्स इंटेंट इंटेंशनल फेलोशी और इफेक्टिव फेलोशी. जो मेन की फिगर्स हैं जॉन क्राउन रैंसम, आई रिचार्ड, क्लिंथ ब्रूक्स who advocates analyzing how elements like paradox and tension create a unified meaning. Core principle: close reading, text as autonomous object, rejection of external factors, internistic criticism. ये इसके क्या है? कोर प्रिंसिपल्स है. क्लोज रीडिंग यानी कि इंटेंस फोकस ऑन द टेक्स्ट, लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड लिटरेरी डिवाइसेस. सिम्बोलिज्म, मेटाफर्स, आयरनी. क्या है मतलब? जो पोइट होता है एक लाइन पढ़ता है, दूसरी लाइन पढ़ता है, लेकिन जो क्रिटिक होता है उन दोनों लाइनों के बीच में भी समझ लेता है कि इनका बीच में भी क्या लिखा हुआ है, उसको भी देख लेता है. उसको इसलिए बोलते हैं क्लोज रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट. एक क्रिटिक ही कर सकता है ऐसा. देन की फिगर्स ऑफ अ वर्क्स: जॉन क्रोन रैंसम, आई रिचार्ड, क्लिंथ ब्रुक्स, विलियम एम्सन. ये क्या है? की फिगर्स, मेजर राइटर्स ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म. जॉन क्रोन रैंसम ने लिखी थी. देन क्लिंथ ब्रुक्स एंड विलियम एम्सन. विलियम एम्सन, 7 टाइप्स ऑफ ambiguity. Clint Brooks, well wrote on. Thank you. Keep watching my videos. Like, share, subscribe the channel.